Hello, friends. Uh, First of all, very welcome to all of you in Leader IS in association with Yashas Institute, Navi Mumbai. Myself, Professor Suhas Sargar. Today, in this live sessions, we all going to learn and understand the State Board of Maharashtra, Standard 10, Chapter number 8, Tourism and History. So let's begin. First, in these chapters, what we all going to learn: the tourism in the past, the types of tourism, development in tourism, conservation and the preservation of historical places, professional opportunities in the tourism and the hospitality industry. So, tourism in the past, the tradition of traveling is a quite old in India. ये सबसे पुराना अपने देश का बिजनेस है. The people used to travel for a various reason like pilgrimage. कई बार यात्रा करने के लिए वो ट्रैवल करते हैं. गोइंग टू लोकल फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, काफ़ी सारी यात्राओं करने के लिए. इन सर्च ऑफ रिनाउंड टीचर्स एंड गुड एजुकेशन फॉर ट्रेड. जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी सारे दूसरे देश से लोग अपने नालंदा यूनिवर्सिटी में आते थे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ टीचर्स अच्छे थे इसलिए. तो इन ब्रीफ, फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स द पीपल टुक अ ट्रैवलिंग फॉर अ वेरियस रीजन. इसके मतलब बहुत सारे रीजन थे जिसके कारण पीपल्स जो थे वो ट्रैवल करते थे. यहाँ पे एक बताया गया है कि डू यू नो द बुद्धिस्ट लिटरेचर टेल अस द गौतम बुद्धा ट्रैवल टू द सेवरल सिटीज इन एंशिएंट इंडिया फॉर अ प्रीचिंग. मतलब गौतम बुद्ध भी काफ़ी सारी जगह पे गए थे. द बुद्धिस्ट मॉन्क वेर ऑप्टेड नॉट टू स्टे एट वन प्लेस बट कीप ट्रैवलिंग कंटिन्यूसली टू द वेरियस प्लेसेस. जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो काफ़ी सारे जगह पे घूमते थे. They're traveling to the lots of many places. They can't stay at one place. Okay, the Jain monks, sadhus also used to travel constantly. वो बहुत बार एक जगह से दूसरे जगह पर travel करते थे. Yuan Shuang, the Chinese monk, traveled to the India 630 CE. In the medieval period, the Saint Namdev, Saint Eknath, Guru Nanak, Ramdas Swami travel extensively in India. Okay, the box clues. Tourism. The tourism can be defined as a traveling to visit the places in a distant region for a specific purpose. Tourism is happen just because the different peoples have the different purposes. That's why they travel. In the later half of the 19th century, see the name of the Thomas Cook is noteworthy in the context of tourism history. They organized a trip by railway from Lake Leicester to Loughborough for about the 600 people. 600 peoples. So later he was successful in organizing a round trip of the Europe. Eventually he established a travel agency selling tourist tickets. These early ventures of the Thomas Cook opened a door for the development of modern tourism. मतलब इसने किया क्या था थॉमस कुक ने कि 600 लोगों को लेके इसने रेलवे से 600 लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पे फ्रॉम लेंसेस्टर टू द लफ्टबोरो को उन्होंने कैरी किया था. और उसके बाद में उसने पूरे यूरोप का भी ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था. और यही एक इवेंट था कि जिसके बाद में लोग एक दूसरे मतलब ट्रैवलिंग इंडस्ट्री मतलब यात्रा का जो व्यवसाय है या उद्योग है वो उभर के आया था. So we are from the Leader IS in association with Yashas Institute. Myself, Professor Suhas Sargar. Now let's begin. Another in box there is given. Do you know the Benjamin of the Tudela? The Benjamin of the Tudela is known as the first European traveler or the discoverer. ये पहला दुनिया का मतलब यूरोप का ट्रैवलर था, एक यात्रेकरू था. He was born in Spain. ये स्पेन में उसका जन्म हुआ था. During the period of 1159 to 1173 CE, he traveled to France. उसने 1159 से लेकर 1173 के दरमियान उसने फ्रांस की यात्रा की थी, जर्मनी की थी, इटली की, ग्रीस, सीरिया, अरेबिया, इजिप्ट, इराक, पर्शिया, इंडिया एंड चाइना. मतलब लगभग यूरोप से लेके चाइना मतलब एशिया तक उसने काफ़ी सारे जो देश थे उसमें उन्होंने ट्रैवल किया था, जिसका नाम था बेंजामिन ऑफ टुडेला. इज नोन इज फ्रॉम स्पेन. ही मेंटेन द डायरीज ऑफ द अकाउंट ऑफ हिज ट्रैवल. हिज डायरीज, उसने अपने जो भी वो घूमा था उसकी एक डायरी मेंटेन की थी. वो जो भी घूमा था हर एक जगह पे वो एक डायरी उसने मेंटेन किया था. इस अकाउंट्स ऑफ हिज ट्रैवल, उस डायरी में उसने काफ़ी सारे जो ट्रैवल के दरमियान उसके जो भी एक्सपीरियंसेस थे वो उसमें लिखे थे. हिज डायरी आर व्यू एज अ पॉइंट ऑफ द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट. उस डायरी को आज हम लोग एक डॉक्यूमेंट की तरह देखते हैं, पुराने इतिहास की तरफ देखने का.
Another one is a Marco Polo, the Italian traveler of the 13th century introduced Asia, especially China to Europe. मतलब एक ट्रैवलर था जिसका नाम था मार्को पोलो. उसने क्या किया था कि इटालियन ट्रैवलर था. इसने 13वीं शताब्दी में जो एशिया का एंड स्पेसिफिकली बोला जाए तो चाइना का जो नाम था, चाइना के बारे में यूरोप के लोगों को उसने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, मतलब पहली बार बताया था. ही रोट अबाउट द फ्लोरा एंड फौना, मतलब काफ़ी सारे झाड़ फूलों के बारे में, या फौना बोले तो एनिमल्स बर्ड्स के बारे में, फ्लोरा बोलो तो फ्लावर्स ट्रीज वगैरह के बारे में, सोशल लाइफ एक सामाजिक व्यवस्था कैसे थी, कल्चर एंड ट्रेड सिस्टम ऑफ इंडिया. काफ़ी सारे जो इंडिया के कल्चर्स है उसके मतलब चाइना के जो कल्चर्स है, इसके अलावा एशिया का जो व्यापार था इसकी कैसे सिस्टम थी, इसके बारे में उसने चाइना को जो भी थिंग्स थे उसको यूरोप को लोगों को बताया था थ्रू हिज राइटिंग्स एंड ऑल. Ibn Battuta, he is another traveler. The traveler of the 14th century took the world on a virtual travel of the Islamic world. ये इब्न बटूटा एक ट्रैवलर था, 14वीं शताब्दी में आया था. वर्चुअल ट्रैवल ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड विथ हिज ट्रैवल अकाउंट्स. इस्लामिक वर्ल्ड के बारे में उसने लिखा था. ही वॉज ट्रैवलिंग फॉर 30 years, मतलब लगभग 30 साल तक इसने ट्रैवल किया था. ही हैड रिजॉल्व नॉट टू ट्रैवल ट्वाइस ऑन द सेम रूट. उसने डिसाइड किया था कि एक ही जगह से वो दूसरी जगह मतलब दोबारा नहीं गुजरेगा. हर बार अपना जो ट्रैवल का रूट था, मतलब यात्रा का जो प्रवाह मतलब रास्ते थे, वो अलग अलग रास्ते से जाएगा. हिज अकाउंट्स आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मेडिकल हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ द सोशल इंडिया. मध्ययुगीन भारत, मध्ययुगीन दुनिया का जो भी इतिहास है वहाँ का और सामाजिक जो जीवन था उसके बारे में इस इब्न बटूटा के कारण हमें आज पता चलता है. गिरार्डस मर्केटर नाम ऑफ द 16th century वॉज अ कार्टोग्राफर. एक कार्टोग्राफर था. ही इज नोन फॉर क्रिएटिंग द वर्ल्ड मैप. एक नकाशा बनाने वाला या नक्शा बनाने वाला या पेंटिंग या चित्रकारी करने वाला ये एक व्यक्ति था. क्रिएटिंग द वर्ल्ड मैप, उसने पहली बार वर्ल्ड मैप का निर्माण किया था. ग्लोब ऑफ द अर्थ, उसने पृथ्वी का जो ग्लोब है मतलब जो सर्कल है उसका भी निर्माण किया था. हिज वर्क प्रूव टू बी द वेरी यूजफुल फॉर नेविगेशन अराउंड द वर्ल्ड. इसने जो भी इसका जो काम किया था मैप बनाने का, ग्लोब बनाने का, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड में इसका जो नेविगेशन सिस्टम है, नेविगेशन बोले तो जैसे हम लोग गूगल पोजिशनिंग सिस्टम्स वगैरह या गाड़ी में जाते समय नेविगेशन यूज करते हैं, मतलब यात्रा में कहाँ जाना है वो दिखाने का. इससे हमें ये पता चलता है कि कहाँ से कौन से देश कौन से राज्यों में है और यात्रा सुलभ होती है. Another is what eventually he established a travel agency selling the tourist ticket. Okay, no. Do you know the tradition of traveling from the corner to corner was prevalent in India from ancient times. हमारे पुराने ज़माने में जिसे एंशियंट टाइम्स बोलते हैं, अर्वाचीन भारत जिसे बोलते हैं. भारत के 3 टाइप्स होते हैं किसी भी इतिहास के. वो होता है एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया. सो एंशियंट इंडिया में आता है अर्वाचीन भारत, मध्ययुगीन भारत और लास्ट में आखिरी आता है वो उसको बोलते हैं कि आधुनिक भारत. एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस को बोलते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस भारत. विष्णु भट्ट गोडसे ब्रोट डाउन द अकाउंट्स ऑफ हिज जर्नी फ्रॉम महाराष्ट्र टू द अयोध्या. एक व्यक्ति है महाराष्ट्र का जिसका नाम है विष्णु भट्ट गोडसे. उसने क्या किया था, महाराष्ट्र से अयोध्या तक जो उसका ट्रैवल किया था एंड बैक फ्रॉम अयोध्या टू महाराष्ट्र आया था. उसने अपना जो भी एक बुक लिखी, बुक इंटाइटल माझा प्रवास, मेरी यात्रा, माई जर्नी, ऐसे एक बुक लिखा था. उस बुक में विष्णु भट्ट ट्रैवल ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857. जब अपने देश में 1857 का रिवोल्ट हो रहा था तब ये जाके माझा प्रवास मतलब उसकी जो यात्रा थी उसी दौरान हो रही थी और उसी यात्रा के दौरान उसको जो अनुभव आए उसने एक अपने माझा प्रवास में लिख दिए थे. माई जर्नी इस बुक में लिख दिए थे. ही वॉज द आई विटनेस फॉर मेनी इवेंट्स रिलेटेड टू द हिस्टोरिकल इवेंट्स. His accounts are fully of detailed description about the various incidences during this period, especially those about the life of Lakshmi Bai, the Queen of Jhansi. इस यात्रा के दौरान जो उसको अनुभव आए, जो इंसिडेंसेस उसको मिले, स्पेशली द रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की थी, जो मध्य प्रदेश की थी, वहाँ के जो राज्य के दौरान उसको जो भी अनुभव आए वो उसने लिखे थे. We also got to know the nature of the Marathi language of the 18th century. इससे हमें पता चलता है कि 18वीं शताब्दी में अपने मराठी भाषा की जो लैंग्वेज का जो भी नेचर था, उसका मतलब जो व्याकरण या उसकी जो भी अदर भाषा के एंगल से जो देखने वाले पहलू डायमेंशन से वो पता चलते हैं. दिस बुक इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ दैट पीरियड. ये एक बुक था
जो अपने हमें 1857 के रिवोल्ट के दौरान का भारत कैसे था ये हमें बताने का एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है विष्णु भट्ट, उसका नाम यहाँ पे है विष्णु भट्ट गोडसे। ओके, I will repeat, this name is Vishnu Bhatta Godse. Okay, now another types of tourism. These days the tourism has been independent field of the local, interstate, national and international business. आज के दौर में ये एक स्थानिक, अंतर्राज्यीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक बिजनेस बन चुका है, एक व्यवसाय बन चुका है। The desire to visit the national and international monuments, प्लेसेस एंड द हिस्टोरिकल, लोगों को काफ़ी सारी इच्छाएं होती है, वो अलग अलग देशों को मिले, अंतर्राष्ट्रीय जो मॉन्यूमेंट्स है, काफ़ी सारे स्मारक है, उनको विजिट दे, हिस्टोरिकल प्लेसेस या इम्पोर्टेंस है, जो ऐतिहासिक जगह है उनको जाके विजिट करे, नेचुरल ब्यूटी, जो निसर्ग का जो सौंदर्य है उसको, एंशिएंट सेंटर्स नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, काफ़ी सारे जो भी अर्वाचीन जो केंद्र थे, जो हैंडीक्राफ्ट, हस्तकौशल, पिलग्रिम सेंटर, बहुत सारे धार्मिक स्थल है, इंडस्ट्रियल सेंटर मतलब औद्योगिक क्षेत्र है, साइट्स ऑफ वेरियस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, काफ़ी सारे जो सिटीज़ है, काफ़ी सारे जो मतलब एरिया है जहाँ पे बहुत बड़ा विकास हुआ है, उसको यहाँ पे वो देखने के लिए जाते हैं। प्रमोट द टूरिज्म, इससे क्या होता है कि टूरिज्म मतलब प्रवासी जो होती है, प्रवास यात्रा की जो व्यवसाय वो बढ़ता है। टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विश टू विजिट द नेचुरल एंड मैनमेड साइट, काफ़ी सारे जो यात्रा करने वाले जो दुनिया के लोग हैं वो नेचुरल एंड मैनमेड साइट्स को, मतलब नैसर्गिक और जो कृत्रिम रीत्या मानव ने तैयार किया, जैसे ताजमहल है, आईफिल टावर्स है, या फिर काफ़ी सारे फोर्ट्स है इंडिया के, जैसे रायगढ़ किला है इन महाराष्ट्र, वैसे सारे किलों को वो देखने के लिए जाता है। विच एवर ऑफर द डिलाइटफुल एंड एवर इंस्पायरिंग एक्सपीरियंसेस, इससे लोगों को बहुत बड़ा डिलाइटफुल मतलब अच्छा सुकून मिलता है, उससे उनको इंस्पायरेशन, प्रेरणा मिलती है। द प्लेसेस लाइक द स्नो कैप पिक्स, बीचेस, मतलब काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं जहाँ पे काफ़ी सारी बर्फीली चट्टाने हैं, बीचेस मतलब समुद्र किनारे है, प्रिस्टीन जंगल्स है, काफ़ी सारे जो जंगल्स है, फॉरेस्ट है, विच एवर निगलेक्टेड प्रीवियसली, इसके पहले उनको निगलेक्टेड किया गया था, नाउ बिकेम इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर द टूरिज्म, location of the tourist interest. Mass media began to make the spatial audio visual presentations. जो भी अपनी मास मीडिया है, जैसे प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या सोशल मीडिया है, वो आज ऑडियो वीडियो विजुअल्स मतलब सुनने वाले कुछ ऐसे चलचित्र वीडियोस बना के क्या करते हैं, वो टूरिस्ट के ये लोगों को दिखा रहे हैं, जिसके कारण लोगों में इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। सो टूरिज्म कैन बी ब्रॉडली टाइपिफाइड एज ए लोकल टूरिज्म, ये जो भी टूरिज्म का ये जो बिजनेस है या टूरिज्म का ये जो क्षेत्र है वो स्थानिक टूरिज्म मतलब प्रवास या पर्यटन जिसे बोलते हैं टूरिज्म को, स्थानिक पर्यटन, इंटरस्टेट पर्यटन मतलब राज्यों, एक राज्य से दूसरे जगह राज्य में जाने वाला, या इंटरनेशनल टूरिज्म बोले तो अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म बोले तो धार्मिक यात्राएं, काफ़ी सारे 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा लोग करते हैं, हज की यात्रा करते हैं। हिस्टोरिकल टूरिज्म बोले तो किले को देखना, काफ़ी सारे जो भी राज हो चुके हैं, जैसे शिवाजी महाराज है, टीपू सुल्तान है, औरंगजेब है, संभाजी महाराज है, उनके वो जहाँ पे रहे थे इस जगह को देखना। हेल्थ टूरिज्म बोले तो जैसे केरला में अपने हेल्थ टूरिज्म है। साइंस टूरिज्म बोले तो जैसे नेहरू तारांगण मुंबई में है, या फिर अपने काफ़ी सारे स्पेस सेंटर्स है, अपने इंडिया के अवकाश सेंटर्स है, DRDO है, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उन सारे को देखना, ये साइंस टूरिज्म मतलब वैज्ञानिक पर्यटन हो सकता है। एग्रो टूरिज्म ये नया उभरता हुआ क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एग्रो मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड काफ़ी सारे क्षेत्र उभर के आए। स्पोर्ट्स टूरिज्म भी मतलब खेलों का पर्यटन भी बढ़ रहा है। टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट्स एक्सेट्रा, जैसे पोंगल है या गुड़ी पाड़वा है या फिर क्रिसमस है, ऐसे सारे इवेंट्स को वो जगह पे जहाँ पे वो सेलिब्रेट होते हैं, वहाँ पे अलग जहाँ पे सेलिब्रेट नहीं होते वहाँ के लोग वहाँ पे जाते हैं, जैसे गोवा में 31 को मनाया जाता है, या फिर यूरोप में जाते हैं। लोकल एंड इंटरस्टेट टूरिज्म, स्थानिक और अंतर्राज्यीय पर्यटन जो है वो द काइंड ऑफ टूरिज्म इज नॉट वेरी ओवरवेलमिंग बिकॉज इट इज़ विद इन वंस ओन कंट्री, ये हमारे देश के अंदर ये ट्रैवलिंग करते हैं, अपने देश के अंदर ही एक जगह से दूसरे जगह पे पर्यटन होता रहता है। इट डज नॉट कॉज द डिफिकल्टीज ऑफ लैंग्वेज प्रोक्योरिंग द करेंसी एंड डॉक्यूमेंट, इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें नहीं आती क्योंकि सबकी भाषा जो है वो लगभग सेम होती है, करेंसी अपना इंडिया का जो रुपीज़ है वो होता है। देर इज़ नो नीड ऑफ एनी डॉक्यूमेंट लाइक पासपोर्ट, वीजाज एंड ऑल दैट बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग इन अवर कंट्री। अब मोर सो वी कैन प्लान इट एज पर द टाइम सुटेबल फॉर अस, जब हमें समय मिलता है तब हम लोग जा सकते हैं बिकॉज वी आर नॉट ट्रैवलिंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ एनी कंट्री।
इंटरनेशनल टूरिज्म, अंतरराष्ट्रीय जिसे टूरिज्म बोलते हैं, nowadays has become easier to travel because of the easy availability number of options like railway, marine and air transport, because of the advancement in technology of the vehicles like airport, काफ़ी सारे मरीन्स है, जहाज है, एयर मतलब रेलवे है, इसके कारण हम लोग जा सकते हैं. मरीन ट्रांसपोर्ट हैज लिंक द कोस्टल रीजन, देर इज अ ट्रांस यूरोपियन रेलवे रूट्स. इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है, ट्रांस यूरोपियन रूट है रेलवे अपने देश में है. एविएशन हैज ब्रॉट द एंटायर वर्ल्ड क्लोजर. ये जो एविएशन है मतलब विमान वाहु जो है वो पूरी दुनिया को उसने एक साथ एक जगह पे लाके रखा है, just because of connectivity and because of the economic liberalizations policy of the Indian government. The number of the people traveling back and forth from India has increased considerably because of the India ने जो economic policy liberalization मतलब मुक्तिकरण किया गया था, मतलब liberalization, privatization, globalization मतलब मुक्त किया था अपनी अर्थव्यवस्था को, जिससे लोगों का एक जगह से दूसरे जगह पे जाना पॉसिबल हो चुका है. दे इंक्लूड द पीपल ट्रैवलिंग फ्रॉम फॉर स्टडीज़. काफ़ी सारे जो लोग हैं वो अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए, रिलैक्सेशन, जस्ट फॉर मेंटल पीस के लिए, या साइट सीइंग जैसे काफ़ी सारे पहाड़ है, माउंटेन्स हैं, उनको देखने के लिए, प्रोफेशनल असाइनमेंट, काफ़ी सारे बिजनेस के मीटिंग्स होते हैं, एग्रीमेंट साइन करने के लिए, शूटिंग ऑफ फिल्म इंडस्ट्री. बहुत बार भारत और भारत के बाहर सारे लोग जाते हैं, ताकि काफ़ी सारे देश भी इंडिया में आके अपना शूटिंग करते हैं मूवी का. वन नीड टू प्रोक्योर द वेरियस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स फॉर ट्रैवलिंग अब्रॉड. इसके लिए अब्रॉड जाने के लिए हमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए. हिस्टोरिकल टूरिज्म ये क्या है? दिस टाइप ऑफ द टूरिज्म इज अ पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये टूरिज्म जो है वो काफ़ी पॉपुलर है. ऐतिहासिक पर्यटन जिसे बोलते हैं, टूर्स टू हिस्टोरिकल प्लेसेस आर अरेंज टू सेटिस्फाई द पीपल इंटरेस्ट इन हिस्ट्री. काफ़ी सारे जो लोग हैं जिन्हें इतिहास में बहुत बड़ी रुचि है, ऐसे सारे लोग जो है वही ट्रैवल करते रहते हैं. सो दांडेकर, it can be noted in this context that Gopal Nilkanta Dandekar, there is a tours to historical places are arranged to satisfy the people interest in history. It can be noted in the context that Gopal Nilkanta Dandekar, there is one person, renowned Marathi writer, एक मराठी लेखक है जिनका नाम है गोपाल नीलकंठ दांडेकर, used to arrange the hiking tours to the forts in Maharashtra. उनका एक लाइकिंग था कि उनको काफ़ी सारे किले या फोर्ट्स रहते उनके ऊपर जाने का, तो एक्सप्लोर द साइट्स क्लोजली लिंक छत्रपति शिवाजी महाराज एंड हिज अचीवमेंट. जो भी महाराष्ट्र के जो राजा थे, अपने इंडिया के काफ़ी सारे फेमस छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनकी जो फोर्ट्स थे या उनके युद्ध के दौरान जो भी साइट्स के ऊपर विजिट किया था छत्रपति ने, या इवेंट्स हैपन हुए थे ये पुराने काल में, वहाँ पे वो विजिट करने का उनका लाइकिंग था. Okay, Gopal Nilkanta Dandekar. See the name of the Gopal Nilkanta Dandekar. The tours are also arranged to the important historical sites in India, such forts in Rajasthan, ashram of the Mahatma Gandhi and Acharya Vinoba Bhave. आचार्य विनोबा भावे के आश्रम को भी काफ़ी सारे विजिट्स होते थे. Important places related to the Indian War of Independence 1857. See the picture of Valley of Flowers. You would like to know this, friends? We are from the Leader IAS in association with Yashas Institute. Myself, Professor Suhas. We are from Navi Mumbai. Our admissions are in motion. So if you want, you can take the admission for the competitive exams as well as the school section also. Yeah, these two institutions are collaborating this task of the Facebook and YouTubes and other social media, and these are the freely available to all of you. Yeah, you would like to know this. Peoples of the various religious communities are dispersed globally. However, they feel united because of their mythological traditions and the places associated with those traditions. माइथोलॉजिकल बोले तो किसी अध्यात्म के कारण या किसी रिलीजन्स के कारण काफ़ी सारे लोग एक साथ आते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं. दिस क्रिएट द डिज़ायर टू ट्रैवल टू दोज प्लेसेस एंड इट गिव्स राइज टू द रिलीजियस टूरिज्म. जैसे अष्टविनायक यात्रा है, 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा है, या 3.5 जिसे तीर्थपीठ बोलते हैं अपने महाराष्ट्र में, इंडिया में, वहाँ पे जाते हैं लोग. काशी में जाते हैं, बद्रीनाथ में जाते हैं, या फिर तिरुपति बालाजी को जाते हैं. दीज आर देयर स्पिरिचुअलिटी brings them to travel, leads them to travel. It bring in this context the construction of the undertaken by the अहिल्याबाई होळकर. अहिल्याबाई होळकर जो इंदौर के संस्थान की रानी थी, उन्होंने क्या किया था, स्पेंडिंग फ्रॉम हर पर्सनल फंड,
उन्होंने अपने पर्सनल फंड से क्या किया था, काफ़ी सारे ऐसे जगहों को उन्होंने बिल्ड किया था, उनको जो भी मेंटेनेंस है वो करते रहते थे, स्पेशली द रूट्स लाइक चारधाम यात्राज एंड 12 ज्योतिर्लिंग से। जियोग्राफिकल टूरिज्म एक अनदर एक डायमेंशन है टूरिज्म का। This type of the tourism involves the visiting places to observe the special geographical features of a region. It includes the various natural and animal sanctuaries, places like Valley of Flowers, Uttarakhand, the various beaches. Okay, it includes the various natural and animal sanctuaries. काफ़ी सारे natural and animal sanctuaries है, अभयारण्य है, नैसर्गिक पक्षी अभयारण्य है, बर्ड अभयारण्य है, वहाँ पे लोग जाते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स इन उत्तराखंड, उत्तराखंड काफ़ी फेमस है फ्लावर्स के लिए। वहाँ पे काफ़ी सारे वैलीज में फ्लावर्स के अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्शंस किया जाता है। वेरियस बीचेस, काफ़ी सारे समंदर के किनारे। यूनिक जियोग्राफिकल वंडर्स लाइक द क्रैटर्स लाइक इन लोनार, जहाँ पे लोनार के वहाँ पे एक मेटेराइट्स था जो आके टकराया था। महाराष्ट्र में ये इसके लेक भी बना है, दैट इज कॉल्ड द लोनार लेक। And Ranjan Khadge, the naturally carved out cavities in the rocks at Nighos in Maharashtra. महाराष्ट्र में ये naturally carved cavities को लोग देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म करते हैं। Many tourists like to visit these places to satisfy their curiosity. अपनी जो जिज्ञासा है उसको satisfied करने के लिए लोग यहाँ पे जाते हैं। Another is a health tourism. The people from the Western countries find the health services and facilities in India comparatively cheaper. हमारे देश की जो करेंसी है कंपैरिजन टू द अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड थोड़ी सस्ती है, जिसके कारण हमारे यहाँ पे जो हेल्थ सर्विसेज है उसका जो रेट है या उसका जो कॉस्ट है वो कम आती है। एज अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर हैविंग येट अ गुड स्टैंडर्ड वी आर प्रोवाइडिंग, एंड दैट्स वाई द हेल्थ टूरिज्म भी काफ़ी सारा फेमस हो चुका है और संख्या बढ़ती जा रही है। हेंस मेनी फॉरेनर्स प्रेफर टू कम to India to avail the medical facilities, the health services of the India in tropical country where the ample sunlight is available throughout the year. हमारा जो देश है वो ऐसे ट्रॉपिकल रीजन में है, फ्रॉम इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दौरान है, तो काफ़ी सारा एम्पल लाइट पूरे साल के 12 महीने में से बहुत सारे दिन बहुत सारी सनलाइट आती है। दिस अट्रैक्ट द टूरिज्म फ्रॉम द कंट्रीज विद अ कोल्ड क्लाइमेट टू द इंडिया। काफ़ी सारे जो कंट्रीज है जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट है, ठंडा हवामान है, जैसे यूरोप है, अमेरिका है, या फिर नॉर्दर्न या साउदर्न पोल की तरफ रहने वाले जो देश है वो लोग यहाँ पे आते हैं। ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ द फैसिलिटीज फॉर द योगा ट्रेनिंग, द थेरेपीज बेस्ड ऑन द आयुर्वेदा इज वन मोर रीजन टू वांट टू विजिट इंडिया। योगा भी है, अपने देश की जो ट्रेनिंग है, काफ़ी सारे थेरेपीज आयुर्वेदा की है, जिसके कारण भी लोग इंडिया को विजिट करते हैं। एग्रो टूरिज्म ये अनदर एक उभरती हुई फील्ड है। एग्रो टूरिज्म विच इज ऑल्सो नोन एज एग्री टूरिज्म। ओके, खेती पर्यटन जिसे बोलते हैं, खेती का पर्यटन बोलते हैं, इज रैपिडली डेवलपिंग स्पेशली मीन फॉर द अर्बन पॉपुलेशन विच हैज अ वेरी लिटिल एक्सपोजर टू द रूरल लाइफ एंड एग्रीकल्चर। काफ़ी सारा जो गाँव में रहने का जो रहन सहन है, तरीका है, उसका काफ़ी सारा एक छोटा सा डायमेंशन से वो लोगों को आज पता चलने लगा है। नाउ द इंडियन फार्मर्स आर ऑल्सो विजिटिंग द फार अवे प्लेसेस लाइक एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। अपने देश का भी जो किसान है वो भी अपने देश में अलग अलग सेंटर्स को जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में है। इसके अपार्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज एंड कंट्रीज लाइक इजराइल वेयर द एक्सपेरिमेंटेशन इज एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर इज कैरिड ऑन। काफ़ी सारे जो देश है उसमें से स्पेसिफिक देश है इजराइल, जहाँ पे काफ़ी सारे एग्रीकल्चर्स के ऊपर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। इसको देखने के लिए अपने देश के जो किसान हैं वो इजराइल को विजिट करते हैं। स्पोर्ट टूरिज्म वाज डेवलप्ड इन द 20th century. There are the various sport events are organized on international level like Olympics, Wimbledon, World Chess Championship and International Cricket Tournament, etc. While there are the event like Himalayan Car Rally on national level, event like the Maharashtra Kesari wrestling competitions are organized on a state level. Traveling to attend the such events comes under the sport tourism. जो भी खेल की जो स्पर्धाएं होती है और कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनको देखने के लिए लोग ट्रैवल करते हैं। Tourism based on special events. The people want to travel and they are often on the lookout for the special reason to do it. In the 21st century, it has become the common to organize such events, which also help to promote the tourism.
फिल्म फेस्टिवल है जैसे गोवा में होता है, या कांस फेस्टिवल जैसे यूरोप में होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ द सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, इंटरनेशनल बुक्स एग्जीबिशन होते हैं, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्पेशल इवेंट्स एंड पीपल कीप विजिटिंग सेवरल प्लेसेस टू अटेंड सच स्पेशल इवेंट. Many literature enthusiasts in Maharashtra travel every year to attend the Akhil Bharatiya Marathi Sahitya Sammelan. तो पैन इंडियन मराठी लिटरेचर कन्वेंशन होता है, उसको भी काफ़ी सारे लोग ट्रैवल करते हैं. डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म ये अनदर मुद्दा है. The crucial issue in the development of tourism is providing the proper guidance to the national and international tourists about the various aspects of the actual travel, proper social conduct during the tour and during their stay at the destination. डेवलपमेंट टूरिज्म का ये पर्यटन क्षेत्र का तब हो सकता है जब हम राइट गाइडेंस, एक पर्यटक जो गाइड करते हैं, जो मार्गदर्शक जिसे बोलते हैं, वो अगर उनका बिहेवियर, उनका एक्चुअल इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना, या जो भी सोशल कंडक्ट है, अलग अलग देश के अलग अलग नॉर्म्स रहते हैं, उसके हिसाब से यदि हम लोग मैच करें अपने टूरिस्ट गाइडेंस को, तो अपना देश आगे जा सकता है. Let us find out in box. Apart from the types of tourism that mentioned above, there are the other types like the science tourism, leisure and relaxation tourism, also known as a wellness tourism, cultural tourism, group tourism, etc. लेजर मतलब घूमने के लिए, अपनी थकान दूर करने के लिए, या फिर साइंस मतलब किसी वैज्ञानिक क्षेत्रों को देखने के लिए भी पर्यटन लोग करते हैं. Let us find more about with the help of the teachers and internet. टीचर्स और इंटरनेट की ये आप लोग ज़्यादा जान सकते हैं. Another, to this gather more information about the स्वच्छ भारत ड्राइव. स्वच्छ भारत ड्राइव के बारे में अलग और इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कीजिए. Giving the priority to ensure the safe transport and security facility for the tourist, amenities of reasonably good standard